We are here to celebrate the 4 years of National Education Policy 2020. It was a policy which came after so many years, and it had a vision to strengthen the Indian education system with a lot of directions and bringing rampant changes. So today we have Dr. Sanjeev Rai with us, who is going to address this gathering on the topic 4 years transformational journey through NEP 2020. Before we start with the session, let me just introduce him so that the wider audience knows that the kind of background he's bringing with himself for this session. So, Dr. Sanjeev Rai is PhD in Education from University of Delhi. Before that, he did his MEd and B.Ed from University of Delhi. He is a postgraduate in Political Science from the University of Allahabad. His key skills and expertise has been into the area of strategic training, project planning and management, proposal writing, research and evaluation, conflict analysis. He has a wide professional background with himself. He has been an educationist with 22 years of experience in various areas of education, including the developmental area also. So he has an expertise in education and emergencies and stakeholder engagement. He has an international experience of working in countries like Afghanistan, Qatar, and besides India. Further, currently he is an officer. He is not an officer right now, but a previous role he has been an officer on special duty with the Governor of Jharkhand, India. And his focus area is higher education strategy, research and ethics course, teacher recruitment, and skill-based courses. We have missed something in this presentation. He is the founder of School of Open Ideas, which is a think tank in this area. So his previous experiences has been with CARE India, where he was the educational consultant. Before that, he was adjunct professor at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. He was senior educational specialist for Swedish Committee for Afghanistan. And he was a senior program manager, research and education above all in Qatar. Besides that, he has a lot of affiliations and membership with different organizations and associations. He has been the former member of Global Steering Group on Education, Save the Child International. He was the co-chair of Alliance on Post-Conflict and Peace Education. He was member of Expert Committee IGNOU. He was the founder member of Right to Education Forum India. And his key contributions have been to develop strategies for child protection and education in multiple states. He implemented innovative teaching methods and curriculum in conflict zones. He has facilitated workshops in improving learning quality and reaffirming assessment systems. So with this kind of expertise, this kind of wisdom, this kind of experience which he's bringing to himself, we can expect that this discussion is going to be a very, very encouraging one and enlightening one for all of us here. So now I would request Professor Dhananjay Joshi, our Honorable Vice Chancellor, sir, to please address the gathering and give a formal welcome to Dr. Sanjeev Rai. Thank you very much, Dr. Sonal. It's a great honor for Delhi Teachers University to welcome a renowned educationist, social worker, researcher, and above all, a wonderful human being and a very good friend, Dr. Sanjeev Rai. डॉक्टर राय आपका दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय हार्दिक अभिनंदन करता है। यह नवजात विश्वविद्यालय अभी 2 वर्ष पहले ही दिल्ली विधानसभा के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो छोटा सा अंकुर लगा है ये एक वृक्ष के रूप में तब्दील होगा। एंड with your good wishes that the university has a legacy and doing a credential job in the field of teacher training. Also, we are working in developmental sector, community organization, community sensitization, running community school for the deprived section, and as well as we are running masters in education program that the first batch was just launched last year only. Or इस साल we are the pioneer in India that we will leading with the one of the very prestigious program is BA in Education Honors, जो कि भारत में अभी बहुत बड़ी सोच इसके लिए चाहिए। कुछ भारत के राज्य हैं, उड़ीसा, जहाँ 9th के बाद ही 9वीं कक्षा के बाद ही शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पर अभी भी हमने इसको फील्ड के तौर पर ही स्थापित रखा, डिसिप्लिन के तौर पर हम इसे नहीं बना पाए। हालांकि शिक्षा नीति को आए हुए आज 4 वर्ष हो रहे हैं और बहुत बड़ा मंथन इस पर हो रहा है देश भर में, और मुझे पूरी उम्मीद है
कि जो कार्य दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय ने किया, जिसके आप बहुत साक्षी भी हैं। हमने एजुकेशन को एक डिसिप्लिन के तौर पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए चेयरमैन यूपीएससी को भी अप्रोच किया और उसके साथ चेयरमैन यूजीसी को भी, मानव संसाधन यानी अब जो शिक्षा मंत्रालय कहलाता है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को भी। उसके अलावा हमने जितनी इकाइयां हैं, जितनी शिक्षा की बॉडीज़ हैं, हमने सबको इसमें अपने साथ साधने की कोशिश करी, मीडिया को भी। और हम चाहते हैं कि PIL के द्वारा एक देश में इसके लिए हम एक याचिका भी रखें, क्योंकि ये आज एक बहुत बड़ी बात है जिसको मैं विषय के इतर में, हालांकि ये मैटर 4 ईयर NEP के ऊपर हम इसको एक असेसमेंट के तौर पर आज हम डेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब इस शिक्षा का विद्यार्थी ये प्रश्न पूछता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, क्या मैं स्कूल में ही जाऊंगा BA BEd करके या ITEP के बाद, या मैं MEd करके शिक्षा के विषय को हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाऊंगा, उसके अलावा मेरा कोई स्थान है या नहीं है, क्या केवल स्कूल का टीचर या कॉलेज का टीचर बनने के अलावा मेरे लिए कोई और देश में कोई स्पेस है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं इसका जवाब डॉक्टर संजीव राय तो देंगे ही, क्योंकि वो एक इसके साक्षात एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उन्होंने शिक्षा विषय में PhD करी और हम लोगों का जो जुड़ाव है वो करीबन 22 साल पुराना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से एक यात्रा हमने साथ साथ शुरू करी। हम दोनों ने BEd किया, साथ में ही बाद में MEd किया और PhD भी की। और उन्होंने वो दिखाया कि कैसे केवल एक परंपरागत एक जो लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और कहा गया है कि लीक छोड़कर 3 चले, शायर सिंह सपूत। तो उन्होंने सपूत की तरह, एक शायर की तरह और एक सिंह की तरह कन्वेंशनल से अलग एक धारा बनाई, जिसको हम डेवलपमेंटल सेक्टर कहते हैं। और उसके हेल्म ऑफ द अफेयर्स, ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी केवल एक इनिशिएटर के तौर पर रहे हैं, वो प्लानिंग के तौर पर भी, एग्जीक्यूटर के तौर पर भी और डिसीजन मेकर के तौर पर भी। चाहे यूनेस्को में काम करना हो, चाहे वॉर प्रोन अफगानिस्तान के लिए नीति बनानी हो, चाहे नेपाल जैसे परवर्ती राज्य की शिक्षा नीति में अपना योगदान देना हो, चाहे जो है कतर के लिए कार्य करना हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, उन्होंने कोई ऐसा एरिया नहीं है। और वर्तमान में उन्हें थोड़े दिन पहले ही झारखंड के राज्यपाल जी का OSD के तौर पे वो रहे, और अभी वो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ जो उनका ब्रेन चाइल्ड है। और अगर आप सोशल मीडिया पर आप उन्हें देखें तो मैं तो कई बार उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित होता हूँ कि वो अपने छोटे छोटे से ब्लॉग और इतने अनुभव लेकर के हमारे बीच में आते हैं, और अपनी मातृभाषा भोजपुरी से जुड़े हुए एक बहुत बड़े विद्वान हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं, एक बहुत बड़े लेखक हैं। उनके लेख अक्सर भारत के प्रसिद्ध मैगजीन और जर्नल्स पे छपते हैं, और वो खुद जो है बड़े ही संवेदनशील शिक्षक हैं। कई विषयों पर उनका बहुत गंभीर काम है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं उनके विषय में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के तौर पर भी उन्हें जानता हूँ, और एक एकेडमिशियन के तौर पर और एक मित्र के तौर पर भी। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे विश्वविद्यालय में जो उनका एडवाइजरी रोल है और जिस तरीके से उन्होंने स्वेच्छा रूप से हमारे विश्वविद्यालय को अपनी पूरी ज्ञान परंपरा और अपनी पूरे अनुभव जो दिए हैं, वो मुझे लगता है कि वो आज भी बहुत कम समय में उनसे मेरी वार्ता हुई, जब उन्होंने थर्सडे के दिन या वेंसडे के दिन जब मैंने उनसे ये विचार रखा और उन्हीं का किसी विषय में फ़ोन आया था, उन्होंने सह आग्रह हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं इसमें अगर फिजिकल मोड में होगा तो भी मैं आऊँगा, और अगर ऑनलाइन हुआ तो भी मैं इसमें शामिल होऊंगा। क्योंकि अभी विश्वविद्यालयों में अवकाश चल रहा है, ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, हमारे विद्यार्थी अपने अपने गांव, बिहार, उत्तर वेस्ट बंगाल तक गए हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस लेक्चर को हम अपने रिकॉर्ड करें, यूट्यूब में डालें और इसको आर्काइव करें, और आने वाले समय में जो हमारे BA के स्टूडेंट जब आ जाएँ उनको भी ये लेक्चर सुनाएं, और जब हमारा ओरिएंटेशन शुरू हो विधिवत रूप से तो उसके लिए डॉक्टर राय हमारे विश्वविद्यालय आएँ और हमारे विद्यार्थियों को भी संबोधित करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए संजीव जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना समय निकाला, और आज भी 2 लेक्चर आपके थे, और भारत सरकार के बहुत सारे कार्यों में आप हैं तल्लीन, और उसके बावजूद आपने इस यूनिवर्सिटी को समय दिया। सो इट्स ए वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव ऑनर्ड अस। और हम चाहेंगे कि आपकी ये जो विश्वविद्यालय के साथ जो जुड़ाव है ये हमेशा रहे, और आप अपने विचारों से इसे पुष्पित और पल्लवित करते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय में पुनः अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। Thank you, Professor Joshi. I feel really honored in the august company of
you and Dr. Sonal and other colleagues and students and other employees. It's really giving me a great pleasure of interacting with my friend, close friend, and who himself set a milestone for the people who see the career in education sector, that hard work, how hard work pays. And Professor Dhananjay Joshi, I still remember we were doing the classes of Professor Jain, Professor Krishna Kumar ji, and others together, and he took this path of teaching, and now he became the vice chancellor. So thank you so much, Professor Joshi and Professor Sonal, for inviting me on this occasion when this NEP 2020 is completing 4 years. So I think some technical glitches there. So it will be resumed soon, I hope. So सर के एंड से शायद कनेक्टिविटी इश्यूज हैं सर. ग्रुप में और स्टूडेंट क्यों नहीं जुड़े अभी तक, प्लीज पता करें. जी. या आ गए डॉक्टर संजीव राय. अच्छा, okay. Technical glitches keep happening. So the timing, if we see the timing when the work of NEP started. The COVID-19 pandemic. So it's good that we survived in that pandemic, and so we are here and we are interacting with each other. The context when the NEP 2020 got conceptualized was the context of 21st century. No, so the world is changing, the India is changing, and in this change context, what needs to be done in our education system? How the education system could be aligned to prepare the people who suits best for the society, who suits best for the industry and other sectors. So अब अगर यूनिवर्सिटी को आप देखें तो लगभग आप मान लें कि यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत देखें तो ऑलमोस्ट 500 इयर्स से यूनिवर्सिटी सिस्टम चल रहा है. और इंडिया में ऑफ कोर्स व्हेन द ब्रिटिशर्स केम दे आल्सो ब्रॉट दिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम. ये उनके साथ आया. लेकिन अगर आप ताज्जुब की बात ये भी है कि अगर आप देखें कि इन पिछले 100 सालों में अगर जो सबसे कम जो चीज़ बदली है वो बदली है हमारा क्लासरूम. हमारे क्लासरूम में सबसे कम बदलाव आया है. अब तो NEP 2020 ने जो एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, वो दिया है कि टू ब्रिज बिटवीन फील्ड एंड द प्रैक्टिस. जो क्लासरूम में या रिसर्च जो प्रैक्टिस चल रही हैं उसके साथ आपके फील्ड का कनेक्शन करने की. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो ऑप्शन दिया गया, बिकॉज एक्सपीरियंशियल लर्निंग को स्पेस देते हुए कि इफ लाइक you completed some credit course, 4 credit course, 8 credit course, and you want to walk and then again come back and join the course. So NEP 2020 gives you that flexibility. अब मैं आज की बातचीत को 4 हिस्सों में रख के बात करना चाहता हूँ. पहला हिस्सा है क्वालिटी of learning, quality of research. The second issue which I want to reflect upon is the
technology, and the third is the language, and the fourth one is the education and employability. As Professor Joshi was reflecting upon that, the students who wants a career in education can join the new course which DTU is about to launch. So I'll speak on these four topics briefly. If we see the challenges of higher education, because it's a 4 years only NEP, so it has to go long way. So 4 years में कोई evaluation तो नहीं हो सकता, but insights, you can get insights that where more focus is required. So quality, if you see the quality of learning, so the major challenges of the research in education sector. No. What I realized while working in the field and with academic institutions is that that applied researches should be more in the university system. Every PhD, every doctoral research work, or every dissertation of master level that contributes in the world of knowledge and adds something. But current need, considering the NEP 2020 and the need of the world, is to bridge the field knowledge with the academic knowledge. कैसे क्लासरूम में वो प्रैक्टिसेस आएंगी, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है. उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, मैं कई बार ये यूनिवर्सिटी में टीचर से पूछता हूँ कि आप जैसे पढ़ाए गए, आपके टीचर्स ने जैसे आपको पढ़ाया, क्या आप वैसे ही पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को? इस सवाल के दो एस्पेक्ट. एक तो ये कि अगर आपको लगता है कि और वी ऑल आर हियर बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स, हमारी जो भी यात्रा रही है एजुकेशन में, उसमें मेजर रोल हमारे टीचर्स का रहा है. तो मैं ये पूछता हूँ कि आप जैसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्या वैसे ही आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया था? अब इसमें दो बातें जो हैं, वो एक तो ये है कि इतने साल बाद, 25 साल बाद भी अगर आप भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो चलो एक अच्छी बात है कि यू गिव क्रेडिट एंड यू फील एंड यू कंसीडर द मेरिट ऑफ टीचिंग इन दैट वे. अच्छी बात है. लेकिन उसके साथ ही अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है. आपके स्टूडेंट का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, क्लासरूम का चेंज हो गया. तो आज की तारीख में स्टूडेंट्स के पास एक एडवांटेज ये है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स ओनली फॉर द नॉलेज और फॉर द इंफॉर्मेशन. दे हैव वेरियस सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन. When the education system, this modern education system got designed, at that time, the students were dependent on the teachers, and teachers were fully responsible to disseminate the curricular items. But now, students have multiple options. आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, उसी समय वो गूगल करके देख रहे होते हैं. अब इसमें चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है कि अगर टीचर का भी, टीचर्स ने जो पीपीटी बनाया है वो उसी गूगल की मदद से बना है, या चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई की मदद से बना है, तो स्टूडेंट वोंट बी इंटरेस्टेड. मैं कई बार जैसे ये भी सवाल पूछता हूँ कि अगर अटेंडेंस का कंपल्सन हट जाए तो क्या नॉलेज के लिए मेरी क्लास में स्टूडेंट आएंगे? मैं कई बार अपने को ऐसे पूछता हूँ कि अगर अटेंडेंस का कोई कंपल्सन हटा दिया जाए तो whether they would be coming to listen me or not. So teachers need to offer something plus more. And currently, like, मुझे लगता है कि पेडागोजी में जो चेंज की एक ज़रूरत है कि we have to give them the environment, of course, what Einstein has also suggested, that give them the learning environment. So I think the teacher's role is to share their own experiences and their own journey.
And in this journey, often the students treat teachers as their role model. And what happens when they take teachers as role model और the vice chancellor as a role model, उनको ये लगता है कि इनके लाइफ में कोई फेल्योर नहीं है और इनकी जर्नी बहुत स्मूथ रही और हम भी इस रास्ते से चल सकते हैं। आज के स्टूडेंट में जो एक चीज पैदा करने की जरूरत है वो रेजिलियंस है और इंटेलेक्चुअल करेज की कमी है। They should also realize that every person, whether teacher, whether vice chancellor or somebody else, has this trajectory having success and failure both. आजकल के बच्चों को आप देखिए कि असफलता बर्दाश्त करने की उनमें क्षमता बहुत कम हो रही है और इसको एड्रेस केवल टीचर्स कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि दे रिलाई मोर ऑन टीचर्स देन देयर पेरेंट्स मेनी अ टाइम्स। तो एक तो रेजिलियंस कैसे पैदा होगा, बच्चों को असफलता बर्दाश्त करने की क्षमता कैसे पैदा होगी, और टीचर्स जब अपना केस उनके सामने प्रेजेंट करें, so they should also be courageous to share their failure. 2016 में जॉन हाउसफेयर नाम के एक प्रोफेसर का सीवी बहुत वायरल हुआ बिकॉज उन्होंने एक सीवी ऑफ फेल्योर बनाया एंड ही मेंशन दैट कितनी जगह वो फेल हुए, कब उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, एडमिशन नहीं मिला और कब उनका पेपर रिजेक्ट हो गया, और वो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्रेरणा का स्रोत बना। तो क्वालिटी को लेके जो कंसर्न है, पेडागोजी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक क्वालिटी एस्पेक्ट चेंज नहीं होगा। तो टीचर शुड बी मोर ऑन सपोर्टिव रोल, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ज्ञान के स्रोत बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हमने रास्ता बता दिया, रेफरेंसेस बता दिए, एंड नाउ गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू कम, प्रेजेंट, डिस्कस, एक्सप्लोर, गो आउटसाइड, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज। जैसे एक असाइनमेंट ये भी हो सकता है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि डॉल म्यूजियम है दिल्ली में, डॉल म्यूजियम हम लोग बच्चों को दिखाने जाते हैं, डॉल म्यूजियम ITO पे है, रेल म्यूजियम है, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। सो हाउ कैन डॉल म्यूजियम बी अ रिसोर्स, कि भाई वो एजुकेशन का रिसोर्स कैसे हो सकता है? आप कितने देशों की संस्कृतियां वहां से पढ़ा सकते हैं, उन डॉल्स को देख के आप क्या क्या बता सकते हैं, आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अगर जोड़ेंगे टीचर्स, तो मुझे लगता है कि दे वुड बी द बेस्ट टीचर्स, और उस क्लास, उस इंस्टीट्यूट की प्रासंगिकता भी बहुत बढ़ जाएगी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, तो उसमें जो जहां वो पहुंचेंगे वही हम भी पहुंचेंगे। नंबर जैसे तो दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें, तो टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो दो सवाल इमर्ज करते हैं, दो सवाल टेक्नोलॉजी को लेके इमर्ज करते हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट वी टीच एंड हाउ डू वी टीच। तो व्हाट वी टीच, अगेन ये सवाल भी पहले सवाल से जुड़ा हुआ है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वाकई में उसको पढ़ाने की जरूरत है, और स्टूडेंट्स कैन ब्राउज those stuff from other resources, so that can be given as an assignment, and classroom interaction can be focused on something else, or can go deeper, or can go beyond that topic to give a wider understanding. तो हम क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि व्हाट वी टीच, अब इसमें जैसे करिकुलर लोड की बात अक्सर होती है यूनिवर्सिटी सिस्टम में कि करिकुलर लोड बहुत ज़्यादा है। यूके के कुछ स्कूलों ने ड्यूरिंग कोविड उन्होंने, डॉक्टर सोनल आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने मिनट, 5 मिनट पहले आप मुझे अलर्ट कर दीजिएगा। जी सर, जी सर। तो यूके के स्कूलों ने कोविड में क्या किया कि इस करिकुलर लोड को एड्रेस करने के लिए व्हाट दे डिड, they made an alternative
curriculum like optional curriculum. And they said कि भाई हमारा मेन करिकुलम तो ये है और बाकी ये ऑप्शनल है. कोई टीचर, a group of students, if they want, they can learn themselves, or a teacher can help them to learn those issues about those aspects. तो इस तरह से हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने कोर करिकुलम के अलावा एक ऑप्शनल करिकुलम भी हम बच्चों को दे सकते हैं. एंड वी कैन encourage them, promote them to do self-study or Saturday or Sunday tutor format में हम उनको कर सकते हैं. अब टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसमें दो तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट है. कई बार ये टेक्नोलॉजी में जो लोग काम करते हैं दे ऑलवेज share their own experience and they say that at their time the content was quite boring. So अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास जो कंटेंट है, जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं, उसी कंटेंट को अगर हम YouTube पे डाल दें या PPT के फॉर्मेट में हम उसी क्लास में शेयर कर रहे हैं, so it doesn't mean that the content would be interesting, though we have taken a new mode of presenting the content. अक्सर ये हो जाता है कि हम उसी कंटेंट को टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस कंटेंट से जो हमारी क्लास है वो कभी इंटरेस्टिंग नहीं होगी. एवरी मोड of communication demands a different kind of content, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल मोड में अगर हमको जाना है, so our content should also be aligned with the audio visual mode. So you need to work more to fit into that mode. So normal class वाला content उसमें नहीं चलता. अब क्या हुआ कि कोविड ने एक और अच्छी चीज ये दिखाई कि टेक्नोलॉजी कितना पावरफुल है, खासतौर से एजुकेशन सिस्टम के लिए. यू वुड बी रिमेम्बरिंग दैट ड्यूरिंग द कोविड 4,500 edutech companies got registered in the world, and they assessed that the online business of education would be something around $5 trillion annually. ये दुनिया के लेवल पे है. तो उस तरह से कंपनियों ने रजिस्टर किया और बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन भी. हिंदुस्तान जैसे देश में हमारे साथ ये एक लिमिटेशन है, और एक अच्छी बात भी मैं उसको कहूँगा कि ये है कि हम मध्यम मार्गी हैं, मिडिल पाथ हम लेके चलते हैं. तो वी नीड अ ब्लेंडेड मोड टू रीच आउट मोर स्टूडेंट्स, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि 2035 तक वी एम टू रीच 50% स्टूडेंट्स. जो हमारा हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट डेटा है, तो उसका लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक वो 50% लोग हायर एजुकेशन में इनरोल होंगे. तो फिजिकल मोड में मुझे नहीं लगता कि हम 50% इनरोलमेंट डेटा तक पहुंच पाएंगे. तो वो टेक्नोलॉजी उस रीच में कैसे हमारी मददगार होगी, मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर करना चाहिए. और उसके साथ कंटेंट कैसे क्वालिटी का होगा, इंटरेस्टिंग होगा, ये दूसरी बात. अब टीचर्स के सामने ये चैलेंज आता है कि क्लास में 45 मिनट्स 50 मिनट्स का क्लास लेना है, और समटाइम दे डोंट फील कॉन्फिडेंट कि स्टूडेंट्स तो टेक्नोलॉजिकली दे आर मोर इक्विप्ड, मोर एडवांस्ड देन द टीचर्स. लेकिन मुझे लगता है कि जो टीचर्स के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, इफ दे पुट सम एनर्जी लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, I think the classrooms would be more interesting, and they can do wonders in their classroom.
लेकिन टेक्नोलॉजी और पेडागोजी दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर हम पूरे देश के स्तर पे देखें तो अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही एक तीसरा जो डायमेंशन आता है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा दिस इन बेंगलुरु एक किसान जो धोती कुर्ता पहने हुए ही वेंट इन ए मॉल टू वॉच अ मूवी। तो बेटे ने टिकट भी ले रखा था, बट वहाँ पे मॉल के एम्प्लॉइज ने दे डिडंट अलाउ द पर्सन टू गेट इनटू द पिक्चर हॉल क्योंकि मटमैली धोती और कुर्ता था बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग। इट टुक सम टाइम एंड फिर मीडिया आया, फिर वो हुआ, फाइनली द पर्सन गॉट इनटू द मूवी टिकट। ये एजुकेशन में एक विमर्श का सब्जेक्ट है। आई थिंक क्लासरूम में ये एक डिस्कशन का मुद्दा है, क्योंकि अगर NEP 2020 में हम मातृभाषा में शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है डिस्कशन के लिए। क्योंकि जब हम एक नई भाषा सीखते हैं तो हम केवल भाषा नहीं सीखते हैं, वी ऑल्सो लर्न द कल्चर, दैट कल्चर। जैसे जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो आप फिर स्पून से खाना भी सीखते हैं, आप कोट पहनना और टाई पहनना भी सीखते हैं। ये उस स्कूलिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। तो लेकिन अगर एक तरफ आप देख रहे हैं कि दो तरह की आइडेंटिटीज इमर्ज कर रहे हैं कि भाई आप पैंट शर्ट पहने हैं सो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, यू कैन एंटर इनटू द मॉल। और टिकट लेने के बावजूद अगर आप धोती पहने हैं और अगर आपको रोक दिया जाता है तो ये तो एक भाषाई और सांस्कृतिक विभाजन और उसकी दूरी का संकेत करता है। तो इस तरह का जो माइंडसेट है वो कैसे चेंज होगा कि लोकल लैंग्वेज बोलने वाला कोई भी ड्रेस जो हिस्टोरिकल ड्रेस है हमारी उसको पहनने वाला they can also access those services which are available to others and they have paid the price। उन्होंने टिकट खरीदा है और उनको घुसने नहीं देना ये एक घटना नहीं है। इसके अगर आप सांस्कृतिक पहलू में जाएंगे तो वो माइंडसेट काम करता है कि हमको अंग्रेजी बोलने वाले, इस तरह के कपड़े पहनने वाले, इस तरह के लोग सिस्टम में चाहिए। हमको सब तरह के लोग चाहिए, हमको पैंट वाले भी चाहिए, हमको धोती वाले भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ज़रूरत है और नॉलेज इकोनॉमी बनाने का जो एम्फेसिस है NEP 2020 का, उसमें भी वी नीड द पीपल हु हैव द ट्रेडिशनल नॉलेज, वी नीड द पीपल हु हैव द मॉडर्न नॉलेज। तो हमको परंपरा और आधुनिकता दोनों के तालमेल की ज़रूरत है। तो अब हम उस तरह के स्टूडेंट कैसे तैयार करेंगे जिनको अपनी हिस्ट्री भी पता हो, चाहे वो ड्रेस की हो, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे वो फूड की हो और चाहे लर्निंग प्रोसेस की हो, और एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी इक्विप्ड एंड ओपन टू अडॉप्ट न्यू कल्चरल थिंग्स व्हेनेवर एंड वेयरएवर इट रिक्वायर्ड। तो ये एक चुनौती है भाषा के उसमें कि क्या रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ने वाले कैसे अपना रास्ता आगे बनाएंगे। NEP 2020 का इस पे एम्फेसिस है, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को इस पे भी विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकली होता रहा है कि योर शूज, योर ड्रेस, योर हाउस, एवरीथिंग डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, वो हैसियत का इंडिकेटर होते हैं। तो इनइक्वालिटी जो एजुकेशन कैसे इनइक्वालिटी को एड्रेस कर सकता है, वो एक सवाल है जो यूनिवर्सिटीज़ को आगे देखना होगा। अब जो चौथी बात मुझे कहनी है और वो है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी।
अभी तक क्या हुआ कि जैसे अगर आप प्राचीन काल में देखें शिक्षा व्यवस्था को, तो वो स्किल बेस्ड थी और उसमें एक पर्टिकुलर स्किल में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मास्टरी होती थी. आई एम नॉट सपोर्टिंग द कास्ट सिस्टम, बट एक वो स्किल का ट्रेडिशन था जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता था और वो एक स्किल था. अब एक कहावत जब हम फील्ड में काम कर रहे थे तो मुझे सुनने को मिली, वो ये थी कि थोड़ा पढ़े तो हल से जाए और ज़्यादा पढ़े तो घर से जाए. सो समहाउ दिस स्कूलिंग प्रोसेस एंड हायर एजुकेशन, उसने ऐसा किया कि भाई अगर आप पढ़ लिख गए हैं तो आप खेती काम नहीं कर सकते हैं. थोड़ा पढ़े तो हल से जाए कि आपने हल चलाना छोड़ दिया, और ज़्यादा पढ़े तो आप घर से जाए. तो वो सच है, हम लोग पढ़ गए तो अपने गांव छोड़ के हम यहाँ आ गए, और एजुकेशन आपको मोबिलिटी भी देती है, तो वो ठीक है. लेकिन अभी जो दुनिया में पोस्ट कोविड इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था, और उस समय 2021 में 8% न्यू पीपल ग्लोबली दे ज्वाइन द बिलो पॉवर्टी लाइन. पूरी दुनिया में 8% लोग कोविड के दौरान गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे. जो एग्जिस्टिंग थे उसमें वो इजाफा. अभी दुनिया में जो एम्प्लॉयबिलिटी और एजुकेशन के रिलेशनशिप पे काफ़ी बहस चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सेलरेशन के लिए स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है दुनिया में. देखिए क्या हुआ कि 2001 में आप लोगों को याद होगा कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, और उसमें सभी को शिक्षा की बात की गई, RT की बात हुई. लेकिन ग्लोबली जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ, उसको अगर आप लेबर मार्केट के टर्म्स में देखते हैं तो क्या हुआ कि लेबर मार्केट में जब लगा कि एवरीबॉडी इज 5th and 8th पास, तो वहाँ पे डिमांड चेंज हो गई. वहाँ पे डिमांड आ गई स्किल लेबर विद सेकेंडरी एजुकेशन. तो ग्लोबल मार्केट में स्किल लेबर विद सेकेंडरी एजुकेशन की डिमांड बढ़ गई है. लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में जो कोर्स डिज़ाइन होता है, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो, वो भी हो, उसमें इंडस्ट्री के लोगों का इनपुट बहुत कम होता है. आई एम सेइंग दिस विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई मे बी रॉन्ग, बट तो अभी ज़रूरत यूनिवर्सिटी को ये है कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज डिज़ाइन करें, तो उसमें इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट, ये तीनों लोगों की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है. लाइक अब इलेक्ट्रिक कार्स आर कमिंग इन द मार्केट, सो इफ एनी इंजीनियरिंग कॉलेज wants to run a new course, 1-year course, short-term course, 4 credit course, so it's better to ask the people who are working in the automobile sector that what kind of skilled person would be required in India to take care of the e-vehicles, and then those elements can be added in the course and government can approve it. So ये जो अभी एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस आ रहे हैं, बेरोजगारी दर को लेके जो कंसर्न्स उभर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके नए कोर्स बनाने की शुरुआत करनी चाहिए. दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी इज यूनिकली प्लेस्ड, और अभी नई यूनिवर्सिटी है, नवजात यूनिवर्सिटी है. आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि आप एक जो NEP 2020 is a policy, is an idea. So DTU can translate those ideas into action and can demonstrate that okay, NEP talks about this kind of pedagogical model. DTU can demonstrate that NEP 2020 talks about this kind of multiple exit, multiple entry courses. Knowledge economy में contribution के लिए these kind of students and skilled people be required. So
DTU can design courses on those lines and can add value to the existing courses to demonstrate, to translate the ideas of NEP 2020 into action, and can become a reference point for other universities of the country and of the region. And I have trust that in the leadership of Professor Dhananjay Joshi, you all can do it. And this could be a demonstrative model for NEP 2020 to the country and to the other nations. And having passionate team like you all are working closely with Professor Joshi, I have full trust that you can do it because you live a life of an educationist. As John Dewey said, education is not preparation for life, education is life itself. तो उसको जीना पड़ता है जो भी आप काम करते हैं. If you want to set a milestone, you need to live with that work. बस मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ. एक छोटा बच्चा था और उसको फूल बहुत पसंद थे, लेकिन वो फूल खरीद नहीं सकता था और अपनी दादी के साथ रहता था. तो वो देखता था कि एक व्यक्ति every day this person goes to office and he takes a stop and उनके कोट में गुलाब का फूल होता था, रोज बड होता था और वो फिर चले जाते. तो एक दिन बच्चे ने हाथ दे के उनको रोका लौटते समय और पूछा कि सर आप ये गुलाब का फूल क्यों लगाते हैं अपने कोट में. He said that नहीं, मेरे पास एक छोटा सा गार्डन है and I have a gardener and वो मुझे रोज दे देता है, मैं लगा लेता हूँ. So then this child asked the person that, sir, can you give this rosebud to me while returning back to office? तो उन्होंने कहा कि हाँ दे दूंगा, तुम क्या करोगे इसका. तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ और मैं उनको फूल बहुत पसंद है, मैं कुछ उनको दे नहीं पाता हूँ, तो मैं ये दे दिया करूँगा. तो उस व्यक्ति ने ही bought a bouquet. उन्होंने एक पूरा गुलदस्ता खरीदा and he presented to the boy and said, then your cause, because of your noble cause, you deserve a bouquet than a rosebud. और उन्होंने पूरा गुलदस्ता उस बच्चे को दे दिया. While getting this bouquet from this gentleman, this child replied, thanks God, कितना अच्छा दिन है, मैंने एक गुलाब के फूल की चाहत की थी और मुझे पूरा बुके मिला. मेरे लिए एक वैसा ही अच्छा दिन आज का रहा कि मुझे आप लोगों के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला, आप लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला. आई फील रियली ऑनर्ड and blessed in the august company of you all. I'm again thankful to Professor Joshi and you all for inviting me. Thank you. धन्यवाद सर. आपका अपने समय में से समय निकालने के लिए धन्यवाद और इतने सारे वैलिड पॉइंट्स जो शायद हम सबके जहन में कहीं ना कहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा जो आप चीज़ें लेकर के आए. So a big thank you from all of our side also. VC sir आप हैं because sir actually एक मीटिंग के लिए निकल रहे हैं. जी मैं सुन रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ. वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच संजीव जी. आपने उन तमाम बातों को शेयर किया है जो आज के दौर की सच्चाई हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट इससे निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं और हमारी फैकल्टी भी. और मैं चाहूँगा कि देयर शुड बी सम क्वेश्चंस आल्सो क्योंकि आपके पास बहुत सवाल भी हैं और संजीव जी से बेहतर कोई नहीं होगा जो आपके क्वेश्चंस का आंसर करे. सो मैं चाहूँगा ये डॉक्यूमेंट भी हो आज की हमारी ये वो और इसको आर्काइव भी करें ताकि हमारे और स्टूडेंट और लार्जर ऑडियंस तक भी हम यूट्यूब और फेसबुक और तरीके से इसको शेयर करें. मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ. यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू डॉक्टर संजीव राय, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. So the session is open to all. हम आप सभी से कहेंगे कि आप अपनी सभी लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने किसी भी तरह के प्रश्न अगर हैं या कोई भी जिज्ञासा है तो सर से बेहतर कोई नहीं होगा. जैसे कि वीसी सर ने कहा, सर से बेहतर कोई नहीं होगा क्योंकि
बहुत कम मौका मिल पाता है कि हम इतने तजुर्बेकार लोगों के साथ बैठें और उनसे सीखें कि असल में ग्राउंड पे चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि किताबों में और क्लासरूम के अंदर बैठ के बात करना बहुत अलग चीज़ है और ग्राउंड पे वो चीज़ों को देखने में बहुत फ़र्क है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से और लार्जर ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी करूंगी और कहूंगी कि इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नमस्कार सर, मैं त्रिशला बोल रही हूँ और सर एक सवाल मेरा आपसे है, बिकॉज आपने भाषा की बात आप बता रहे थे सर, तो बस ये मैं जानना चाहती हूँ कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात एनईपी 2020 कर रहा है, तो इसमें एक क्लासरूम के अंदर बहुभाषिकता को लाने के लिए क्या क्या किस तरीके से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं? एक टीचर जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में किस तरीके से प्रमोट कर सकता है, उसके क्या वेज हो सकते हैं? क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत बड़ी समस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम में कई सारे भाषाओं को एक साथ लेकर के बच्चों के साथ चलना। जी, बहुत वैलिड सवाल है आपका। आप कितनी भाषाएं जानती हैं? सर मैं 3 भाषाएं जानती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी। हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी, यही सर बोला ना? हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी। हाँ ठीक है, भोजपुरी। बिल्कुल, ये तीनों भाषाएं मैं भी जानता हूँ। तो अब देखिए, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स की बात होती है उसमें आपने कभी इसके बारे में सुना है, जो मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग मेथड जो स्कूल्स में चलता है, कभी आपने सुना है? या ऋषि वैली? देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम दूसरी भाषा कैसे सीखते हैं, दूसरी भाषा हम कैसे सीखते हैं, और आपके पास जो बच्चे आते हैं वो भाषा सीखे हुए आते हैं। अब आपको मान लीजिए कि आपकी क्लास में 4 भाषा के लोग आ गए, पंजाबी वाले हैं, दिल्ली की जो 4 भाषाएं हैं, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक, 4 भाषा आ गई। तो आप लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए क्या करें? अगर लैंग्वेज टीचिंग करना है तो उसका LSRW जो फॉर्मूला होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि आप लिसनिंग एंड रीडिंग और ऑब्जर्वेशन भी है, दीज आर द रिसीविंग स्किल्स। जब आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको वो सुनना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा, देन यू विल रिसीव इट। और डिलीवरी स्किल्स होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो वंस यू स्टार्ट रिसीविंग then you can deliver through speaking and writing. Writing is the last and finest skill, क्योंकि जब आपका मेंटल फैकल्टी में वो भाषा आती है और फिर आप फ्लो में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव रीच्ड टू अ सर्टेन लेवल कि आपने इसको रिसीव किया। तो क्लास में अगर आप ग्रुप बना दें लिंग्विस्टिक के आधार पे और उनको उस तरह के असाइनमेंट्स आप दें, क्योंकि आप देखेंगी और क्लास में कभी कभी किसी सब्जेक्ट पे आप उनको यू जस्ट गिव फ्रीडम कि भाई आप अपनी अपनी भाषा में इस पे बोलो, ठीक है। अब जो हिंदी जानते हैं वो भोजपुरी के बहुत सारे फंक्शनल वर्ड्स को पकड़ लेंगे, कुछ दिन के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में लोटा है, भोजपुरी में लोटवा है, हिंदी में थाली है, भोजपुरी में थरिया है ना।
यहाँ चूहा है, वहाँ मूस है, विच इज क्लोजर टू मूसकम ऑफ संस्कृत। तो एसोसिएटेड लर्निंग अपने आप क्लासरूम में शुरू हो जाए। तो आप ग्रुप बना के बच्चों को असाइनमेंट्स दें कि अपने अपने लैंग्वेज पे काम करें, एंड पीरियोडिकली यू शुड आल्सो कि भाई आप अपने अपनी भाषा में इसी विषय पे बोलो, पूरी क्लास सुनेगी। और इससे वो एनरिच, क्लास भी एनरिच होती है और लैंग्वेज भी एनरिच होती है, बिकॉज फॉर सर्टेन थिंग्स द वर्ड्स मे नॉट बी इन अनदर लैंग्वेज, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश की बात है, अब इंग्लिश में हेडेक है, बट भोजपुरी में उसको कहने के लिए कितने तरीके हैं आप बताइए? कम से कम 10-12 तो मैं ही जानता हूँ। पथता, दुखाता, परपराता, झंझनाता, नहीं। सो यू कैन एक्सप्रेस इन मेनी वे उसी लैंग्वेज। तो सम ऑफ दीज वर्ड्स मे फाइंड प्लेस टू अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि भाषाई और सांस्कृतिक जोन होता है, और जोन ऑल्सो ट्रांजैक्ट फ्रॉम ऑन पीपल कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन। तो इस तरह से आप कर सकती हैं ग्रुप बना के, और सम टाइम यू जस्ट स्टार्ट डिस्कशन विदाउट लाइक बीइंग अफ्रेड। देखिए, इनोवेशन के लिए आपको करेज होना चाहिए फेल होने का, इसीलिए मैंने वो सीवी ऑफ फेल्योर की बात की। ठीक है, 2 क्लास करके देखेंगे, 3 क्लास करके देखेंगे, फेल हो जाएंगे, दैट वुड बी लर्निंग इनसाइट। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे ये पूछना था कि एनईपी 2020 कब तक पूरे तरीके से मतलब अप्लाई हो जाएगा? देखिए, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि पॉलिसी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, इट्स ए गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉलिसी के साथ फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है कि अब ये कैसे ट्रांसलेट होगी, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन के साथ आपको उस तरह के स्ट्रक्चर्स चाहिए, यूनिवर्सिटी में मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, फिर उसके साथ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स एंड चेन ऑफ एजेंसीज और रिसोर्सेज सब इसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आज़ाद हिंदुस्तान में आई, वो कोठारी कमीशन 1966 में बना था। तो अब उसकी रिकमेंडेशन कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं पूरी हुई, उसके लिए आपको इवैल्यूएशन देखना पड़ेगा। ऐसे ही 1986 की जो पॉलिसी थी, तो उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन 1986 पॉलिसी का तो आप कंप्यूटर के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम द कंप्यूटर एजुकेशन गॉट इंट्रोड्यूस्ड 1986। तो वो देख सकते हैं आप एनईपी 2020 में एक जो चीज़ अभी बहुत डोमिनेंटली इन दिस 4 इयर्स में निकल के आ रही है, वो है जो फ्लेक्सिबिलिटी क्रेडिट सिस्टम के जरिए आती है कि मल्टीपल एग्जिट है, मल्टीपल एंट्री है। अभी इसमें रिसर्च और बाकी चीज़ें तो अभी धीरे धीरे आएंगी। इसमें सेमेस्टर सिस्टम आया है, तो उसकी भी मेरिट और डिमेरिट आगे में आएगी। तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया में पता चलेगा कि कितना परसेंट लागू हुआ, कितना नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये हर्षप्रिया ने लिखा है कि हर्षप्रिया ने लिखा है कि यू टॉक्ड अबाउट अप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन सिस्टम व्हिच नीड्स टू encourage and train school level teachers about the same. Actually, we need more provisions, opportunities for research projects. So I would say yes, of course. I think exploration and new ideas are important for the classroom as well as for research also. So chat box में एक क्वेश्चन है। हाँ,
निशात की तरफ से है. Is there any specific strategies and initiatives that are being proposed to ensure that all the students, regardless of their geographical location, have equitable access to technology and digital resources? Also, how might these measures impact the quality and inclusiveness? देखिए ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि यू माइट हैव हर्ड अबाउट द डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल जेंडर डिवाइड. देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अपने आप में इनइक्वालिटी का एक नया वेपन बन जाएगा अगर आप उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल एक्सेस इंश्योर नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी केवल दो लोगों में ही गैप पैदा करती है. वो सेंस ऑफ एक्सक्लूजन नेशंस के बीच में भी होता है कि अब पर हेड कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी हमारे देश में आज क्या है, और अगर हम कोई डेवलप्ड कंट्री देखें तो उनके देश में क्या है. तो नेशन टू नेशन भी डिजिटल डिवाइड होता है. फिर विद इन द नेशन अर्बन रूरल में भी होता है. विद इन द फैमिली अगर आप जेंडर को देखें तो उसमें भी डिवीजन रहता है कि घर में एक मोबाइल फोन है और बेटे बेटी दोनों को क्लास करना है. So you know that who will get the access of that mobile phone, ना. तो जेंडर का रोल वहाँ भी रहता है. कोविड में बहुत सारी स्टडी हुई जिसमें गर्ल्स वेयर लेफ्ट बिहाइंड एंड बॉयज गॉट मोर रिसोर्सेज टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस. तो डिजिटल डिवाइड एक मेजर कंसर्न है विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड दैट आल्सो नीड टू बी डेल्ट विद. और उसी के साथ रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट यू वुड बी गेटिंग are in English. So how the good quality content could be provided in regional languages, that also a question for the universities to deal with. Sir, I am Shanjini this side. Yeah. सर मेरा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एक एनईपी पॉलिसी से शायद लिंक नहीं होगा, बट मतलब एजुकेशन फील्ड से लिंक्ड है. जैसे कि आजकल मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, और गुड़गांव के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के स्कूल्स हैं. जो नए स्कूल्स आ रहे हैं दे बेसिकली से दैट वी फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंड एनईपी पॉलिसी में जैसे आपने बोला कि वी विल फोकस मोर ऑन फील्ड विजिट्स, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले. तो क्या इतना फर्क है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल्स है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट डीपीएस स्कूल्स, दे फोकस मोर ऑन एकेडमिक्स. नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग देयर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आल्सो, बट एक जो नए स्कूल्स आ रहे हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वी फोकस टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वी टेक किड्स टू मोर टू फील्ड्स, बच्चों को उससे नॉलेज ज़्यादा मिलती है. तो कितना मतलब एक पेरेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्कूल चूज करना कि क्या हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाले स्कूल में बच्चों को भेजें जो नए नए मैथोलॉजी लेके आ रहे हैं, या जो पुराने स्कूल अपनी टेक्निक लेके आ रहे हैं उसकी तरफ करें. तो क्या आप इसमें कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से स्कूल चूज किया जाए बच्चों के लिए? देखिए, इसमें जो चैलेंज है, चैलेंज इज नाइदर लाइंग विद द ओल्ड स्कूल व्हिच यू सेड नॉर विद द न्यू स्कूल. द चैलेंज इज विद द पेरेंट्स. एक्चुअली दे डोंट हैव मच टाइम फॉर देयर ओन किड्स. चैलेंज असली यहाँ पे है. इफ यू हैव टाइम फॉर योर किड्स, एनी पेरेंट्स कैन गिव द एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू द चिल्ड्रन, है ना. इस पे मेरे 50 वीडियोस हैं इसी नाम से आपको मिल जाएंगे स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज पे. तो देखिए क्या है कि पेरेंट्स सबसे बड़ा जो गिफ्ट दे सकते हैं वो है टाइम का बच्चों. ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, सो दे आर लुकिंग फॉर ए स्कूल की जो यार सुबह से शाम तक हमारे बच्चों को ध्यान से रख ले. ठीक है, बट एट द सेम टाइम दे डोंट रियलाइज कि भाई वहां पे आपके जैसे 25 और बच्चे हैं. 25 और बच्चे हैं. सो इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, then why your child would be the preferred one in a class of 25 or 40 kids? तो आपको भाई आपके अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास कोई प्लान है इस वीकेंड पे अपने बच्चे के साथ आप सैटरडे कैसे गुजारेंगे? आपके पास कोई प्लान है? क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट में फादर काम करते हैं तो ही इज बिजी विद सम प्रेजेंटेशन. सैटरडे हाफ डे की अभी मत डिस्टर्ब करो, so child can't go.
मदर को लगता है यार घर में मैंने खाना नहीं बनाया आज, कुछ थोड़ा अच्छा बना के, तो अब बच्चे को वहां भी नहीं जा सकता. जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड ऑफ 4 years or 5 years. अच्छा भाई तुम बैठो, तुम उधर करो, अच्छा टीवी लगा दिया. तो टीवी हैज बिकम अ फादर एंड फ्रिज हैज बिकम द मदर. बच्चे जब घर पे आ रहे हैं तो कोई नहीं मिल रहा है, सीसीटीवी है, तो फ्रिज में निकाल के खा लो, माइक्रोवेव में गर्म कर लो. सो जो बॉन्ड बनना चाहिए चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में कि अच्छा एटलीस्ट चलो वन मील वी विल ईट टुगेदर, कि परिवार पेरेंट्स उसमें कोई फोन यूज नहीं करेगा, सब लोग बातें करेंगे, ठीक है. तो जब आप इस तरह का एक माहौल घर में आप दोगे, देखिए मोस्ट ऑफ द एनआरआईज टुडे दे हैव बीन स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स. नहीं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स अभी भी, मतलब एक्सेप्ट सम लॉ, जो भी पुराने प्रोफेसर हैं दे आर प्रोडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. लाइफ में कितना कुछ करने को था. So if you manage time and give exposure to your kids, different kind of exposures, then any school would be good. The school should be in your neighborhood. जितना स्कूल घर के पास रहे छोटे बच्चों के लिए, that would be better. School should be safe, school should be protective, providing protective environment, because आपको बच्चे को टाइम देना है. स्कूल के भरोसे आप रहेंगे तो आप फीस देंगे, क्योंकि स्कूल ने इसलिए नहीं खोला है कि आपके बच्चे को उसको कोई बहुत आइडियल बनाना है. दे माइट हैव लाइक अ बिजनेस मॉडल कि अच्छा इससे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एवरी स्कूल इन्वॉल्व मार्केटिंग के लोग भी हैं, स्ट्रेटजी के लोग भी हैं. तो हाउ टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स, बिकॉज बिजनेस तो वहाँ पे है. तो आपकी कमी स्कूल नहीं पूरा कर सकता है. आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्कूल एक्सपीरियंस कैन बी एड ऑन टू दैट. ओके सर, थैंक यू सर. अब घर में आप अगर मदर टंग नहीं बोलते हैं तो बच्चा स्कूल में नहीं सीखे. सो घर में आप अपनी मदर टंग बोलिए, बच्चा स्कूल में इंग्लिश सीख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वी आर लूजिंग वन लैंग्वेज इन दिस वे, बिकॉज द जनरेशन, older generation, they were equipped with 3 languages at least, but now the new kids are equipped with only 2 languages. One, वो एक साल कोई फ्रेंच रशियन स्कूल में पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अगले साल दूसरा कुछ पढ़ते हैं, छोड़. थैंक यू सर. So did I respond to your questions? Did you get some? Yes sir, I got it. Okay. मतलब main parents should focus on their child. School just can give a background, but main focus parents से जो मिलता है वो किसी से नहीं मिलता. टाइम, आपका टाइम चाहिए बच्चे को. आपका टाइम चाहिए. जब बच्चा आपके पास आए कि लिसन, तब आप सुनिए. नहीं भी पूछता है तो आप पूछिए कि अच्छा स्कूल में आज क्या हुआ. आप जितनी बातें करेंगी उतना ही उनको कॉन्फिडेंस आएगा. ओके. How do we align multi-degree course with the core course to include undergraduate and underprivileged? Any other questions? I think I have already responded on multidisciplinary. Underprivileged students, I think the underprivileged students needs mentoring also. Like just I'm giving you example. Like who will tell these students, which has been mentioned here as underprivileged, I don't know what does it mean, but how to prepare CV for a job, कौन बताएगा? CV कैसे बनाए? हम ग्रेजुएट हो गए, मुझे कौन बताएगा? कोई यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं, स्कूल ने बताया नहीं. How would I learn how to prepare myself for an interview? ये कौन बताएगा कि मुझे कैसे ड्रेस पहन के जाना है इंटरव्यू के लिए? इस यूनिवर्सिटी सीनियर, देखिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक सीनियर जूनियर का लिंकेजेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं कि सीनियर स्टूडेंट्स कैन गाइड जूनियर स्टूडेंट्स ऑन दीज एस्पेक्ट्स.
वो चाहे नई लैंग्वेज सीखने का हो, चाहे वो इंटरव्यू में अपीयर होने का हो, चाहे वो सीवी बनाने का हो, चाहे अपनी प्रोफाइल को एनरिच करने का हो, चाहे दुनिया के एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में जानने का हो, तो दे कैन बी द मेंटर फॉर द जूनियर स्टूडेंट। कंप्लीटली एग्री। मुझे लगता है कि ये शायद हम सभी को कहीं अपने अंडर प्रिविलेज्ड की जो डेफिनेशन है वो बदलनी होगी और शायद उसे संपूर्ण रूप में समझने की कहीं ना कहीं जरूरत है, बिकॉज हम शायद कहीं जो सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज कहते हैं उनके साथ भी ज्यादती हो जाती है कई बार, कि बहुत सारी चीजों में वो भी अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। यस, दैट्स राइट। इट इज एक्चुअली हाउ वी सी एट इट, बिकॉज आप प्रिविलेज्ड कम्युनिटी कहते हैं जो इकोनॉमिकली अच्छे सेक्शन से आ रहे हैं, बट उनकी अंडर प्रिविलेजमेंट अदर रीजंस के कारण है, वो शायद ग्राउंड की रियलिटी नहीं देख पा रहे, ये भी उनकी एक ड्रॉबैक रहेगा। सो दैट नीड्स टू बी रियली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ अस इन सम वे और द अदर। तो कहीं ना कहीं हमें उसको एक वीकनेस ना बना करके कि अंडर प्रिविलेज्ड एवरीबडी इज इन वन और द अदर सेंस, सो वी नीड टू एक्सेप्ट इट। जैसे सर अभी बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट में पेरेंट्स दोनों काम करते हैं और देखने में वो बच्चा बहुत प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से लगता है क्योंकि उसके पास सारे गैजेट्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, बट वो अंडर प्रिविलेज्ड है क्योंकि पेरेंट्स का टाइम नहीं है उसके पास। सो वी ऑल नीड टू रियली अंडरस्टैंड एंड गेट आउट ऑफ दैट जोन कि हम अंडर प्रिविलेज्ड हैं या नहीं है। यस, कुछ एक्सेप्टेड नोशंस हैं जोग्राफिकली जो बहुत स्पेस्ड आउट लोकेशंस पे हैं, उनके लिए कुछ चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, बट देन एवरीबडी हैज देयर पार्ट्स एंड पार्सल्स, तो वो कुछ लोगों के लिए कुछ डिसएडवांटेज बनता है और कुछ लोगों के लिए कुछ और डिसएडवांटेज बनता है, क्योंकि हम ये पूरा पैकेज में मिलता है जी। तो इफ यू हैव समथिंग यू विल बी लूजिंग समथिंग, इफ यू लूज समथिंग यू विल बी गेटिंग समथिंग, तो वो पूरा पैकेज होता है। और इसीलिए पेरेंटिंग पे मुझे पूरा एक YouTube चैनल शुरू करना पड़ा दोस्तों के कहने पे, बिकॉज पेरेंट्स दे टू डिमॉन्स्ट्रेट कि मार्क्स अच्छा 97% आए हैं। लाइफ में हमेशा 97% नहीं आएंगे भाई, कभी 75 भी आ सकते हैं और कभी फेल भी हो सकता है बच्चा। तो वो जो रेजिलियंस की बात मैं कर रहा था, गिव देम द करेज टू फेस द रियलिटी। 97% आया तब भी ठीक है, 75 आएगा तब भी ठीक है, फेल भी हो जाएंगे, फिर एग्जाम होगा, नो बिग डील। तो वो करेज और वो अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देना है, एंड दैट कैन बी गिवन ओनली व्हेन पेरेंट्स हैव द टाइम and they do interact with the child and understand, rather than just forcing child to just do good every time. I guess we are moving towards the end of the session now, and जी आपका भी समय I know if you have other meetings also and other things lined up also, so I would request now Dr. Shaini to please play a formal vote of thanks. Thank you, Dr. Sonal Chabra. First of all, thank you, Dr. Sanjeev Rai, for this very informational session on the transformational journey through NEP 2020. सर ने बहुत अच्छे से इस ट्रांसफॉर्मेशन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और जो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है उसके लिए भी एक दिशा आपने बहुत अच्छे से दी। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी रिसर्च, द लेवल ऑफ रिसर्च दैट वी नीड टू डू, आपने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। उसके बाद आपने करंट सिनेरियो पे भी बात करी जो टेक्नोलॉजी को लेकर है, कैसे टीचर्स आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं, बट स्टूडेंट्स आर वन स्टेप अहेड ऑफ द टीचर, एंड यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डजंट मेक योर सेशन और योर लेसन interesting. The content that you need to impart that has to be very relevant also. तो relevance की बहुत यहाँ पे बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम अलग अलग टूल्स को यूज़ करके ही हम क्लासेस ना लें, क्योंकि बच्चों के पास आजकल टेक्नोलॉजी का इतना एक्सेस है कि वो बहुत चीज़ें अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। तो आपने जो बताया कि व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हर एक टीचर को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपने लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बताया, कैसे जो हमारी एक मदर टंग होती है उसके अलावा कई और लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे रीजनल लैंग्वेज हो गई या कोई भी हम थर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं। जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं कहीं ना कहीं उसके कल्चर को भी हम सीख लेते हैं। तो अगर हम किसी भाषा को सीखने की बात करें उससे बहुत अलग अलग तरह के फ़ायदे भी हो सकते हैं। हम बच्चे को उसके
कल्चर के बारे में बताएंगे, बच्चा वहाँ से हिस्ट्री भी सीख सकता है, बच्चा बहुत चीज़ें सीख सकता है। तो कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेजेस पे उनको किस तरह से सिखाना है या फिर उनको किस तरह से आगे लेके जाना है, इस पे एक बहुत शोध की भी ज़रूरत है और इस पे एक डिस्कशन की भी ज़रूरत है यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये आपका एक सजेशन था विच आई टोटली अग्री विद। अनदर थिंग विच यू रेज्ड was the employability which our education system is leading towards। जो हम आजकल कोर्सेज बना रहे हैं या जो पहले भी कोर्सेज बनते थे, तो प्रोफेशनल लेवल पे जब हम कोर्सेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री का जो इनपुट है वो थोड़ा सा मिसिंग रह जाता है। एंड यू वेरी राइटली सेड दैट देयर हैज़ टू बी collaboration between the industry, the academia and the government while creating new courses, क्योंकि उन courses की जो relevance है वो ground reality से match करने की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा theoretical चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा idealistic फॉर्म में हम चीज़ें हम सिखा देते हैं, लेकिन वो स्किल जो हम क्लासरूम में इम्पार्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो किस हद तक फील्ड में यूज़ हो रहा है वो इंडस्ट्री से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इंडस्ट्री के इनपुट की भी बहुत ज़्यादा नीड है। और हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में हम जितने भी अध्यापक हैं, हम सब इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं कि कहीं ना कहीं इस गैप को एड्रेस करने की ज़रूरत है। So on the behalf of Honorable Vice Chancellor Professor Dhananjay Joshi, the head of the department, Dr. Sonal Chhabra, and rest of the Delhi Teachers University team, and Shiny Vishish, I thank you on the behalf of everyone. Thank you so much, sir, and thank you all the listeners.